Good morning, students. We are going to start with the new chapter that is marketing. Okay. So, before discussing the various topics which are related with the marketing, first of all, we need to understand what basically marketing is, why basically marketing is required. Okay. Marketing basically in any business, there are three different aspects. One is need, another is want, and third one is demand. Okay, so need, what is need? Needs are the unsatisfied satisfied unlimited want. Okay, want क्या है? अब unlimited wants मतलब, for example, I am hungry. So what is the option available with me? There are many things which are available with me. It can be homemade food, okay, any fast food joint, okay, supplying food, snacks, okay. So these are the needs. These are the unlimited wants which can fulfill my desire, that is, fulfill my hunger. Now, when I shortlist out of these three, okay, that okay, I will have food, means uh, cooked food, okay, or homemade food. Now, homemade food, either I am going to have that homemade food from a tiffin center, okay, homemade food. It There are two options. One is to cook myself, okay, or to buy from from tiffin center. Okay. So in both the condition, I need to buy some stuff. When this stuff, okay, is associated with, when demand is, when wants are combined with money power, okay, that becomes demand. Means I am having the money to satisfy my want, then it is demand. Now, what is the role of marketing in all these three? Marketing role is that when need is converted into demand, there comes the role of marketing. Means you were thinking of homemade food, okay? But the company who is into fast food supplying, like McDonald's, KFC, Subway, such type of companies, they are aware that people are hungry and they need food to satisfy their need, okay, to satisfy their hunger. So they market their product in such a way that their product becomes the want and finally becomes the demand of the consumer
who is having the unsatisfied need, i.e., that he is hungry and he wants to fulfill that hunger. Now, here marketing plays an important role for the company for converting that requirement, okay, or fulfilling that requirement with the help of the fast food centers which they are operating, okay, and satisfy the need of the customer who is hungry by supplying them goods at affordable price, okay. So that is what the marketing is doing, okay. तो मार्केटिंग का बेसिक काम यह है कि जो भी अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना और उनको डिमांड में कन्वर्ट करवाना, ये मार्केटिंग का काम है। नेचुरली तो कोई आपकी नीड डिमांड में नहीं पहुंचती। मतलब आप एक इंडिविजुअल को तब तक पता नहीं लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जब तक उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग या इंफॉर्मेशन फ्लो इन ना हो। तो मार्केटिंग का बेसिक काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बेसिक काम है टू फ्लो दैट इंफॉर्मेशन इनटू द ईयर्स ऑफ द कंज्यूमर सो दैट कंज्यूमर is ready to make a decision to buy certain goods to satisfy his needs, okay, unsatisfied needs। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मार्केटिंग का? Marketing is acting as an exchange mechanism. Marketing is becoming a mode of exchange of goods and services। ये कहने का मतलब ये है कि द कंपनी इज having the raw material to produce the goods and they have produced the goods, but unless until that information about the goods which have been produced, okay, uh, are exchanged through exchanged with the money, okay, or for money's worth, until that time production of goods is of no use। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो जब तक मनी या मनी के वर्थ में एक्सचेंज नहीं होगा तब तक उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब यहाँ मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डिफरेंट कस्टमर्स तक बताता है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, ये उसकी क्वालिटीज हैं, एंड दिस इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। So, for example, Amazon has a catalog website, and through that, they are spreading the information to the potential customers that okay, these are the products available with us, these are the quality standards, okay, star rating is being done, and this is the price. And by this particular time, you will get the product transferred from the producer to the ultimate consumer, and there are various other options, payment options and various other facilities are being given। तो ये क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाना फॉर मनी और मनीज वर्थ। And unless until this exchange mechanism happens, there is no use of producing goods and services। So here marketing plays an important role in transferring the goods which has been produced in any company to the ultimate consumer in exchange of money or money's worth। तो ये मार्केटिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। अब हम आते हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट। यहाँ दो एक एस्पेक्ट डिस्कस किया है कि वर्ड इज मार्केट, ओके। मार्केट को अगर ट्रेडिशनल कंसेप्ट में समझा जाए
So it is a physical space where both buyer and seller interact with each other, okay, and exchanges goods like services. तो ये एक फिजिकल स्पेस है जहाँ ये होते हैं इकट्ठे और ये आपस में डील्स क्रैक डाउन करते हैं। तो जो कि बायर ने जो प्रोडक्ट लेने हैं वो सेलर दे के जाता है और सेलर को उसके एक्सचेंज में मनी मिलता है या मनी इज वर्थ। तो ये पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी मॉनेटरी सिस्टम आ गया, तो मनी उसमें एक्सचेंज होना शुरू हो गया। तो ये एक फिजिकल स्पेस है पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, ओके। बट जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग के, मार्केट का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? ओके, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केट वो क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेज दैट इट इज इट इज a space where actual buyers as well as the potential buyers are available to whom goods or services are offered by sellers in exchange of money or money's worth। तो ये है कि यहाँ सिर्फ एक्चुअल बायर ही नहीं होता है, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल बायर्स भी होते हैं। जैसे आपके क्या कहते हैं, किड्स हैं, तो किड्स के लिए अब कंपनीज ने शैम्पू सोप्स वगैरह, तो किड्स को लिए तो ओरिजिनली तो किड्स के लिए कभी यूज नहीं किए गए प्रोडक्ट्स, ओके। वी वर नॉट दैट मच इनटू दैट के किड्स की भी कोई ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट होती है या उनके लिए भी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट मार्केटिंग ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि एडल्ट्स के साथ साथ अब किड्स तक भी वो पहुंचना शुरू हो गए प्रोडक्ट्स लेकर, ओके। And they had started, marketing has started convincing people that kids also need certain cosmetic products for grooming, ओके। तो ये एस्पेक्ट है कि मॉडर्न कंसेप्ट में मार्केटिंग का मतलब है कि इट इज offering goods, the seller is offering goods not only to the actual buyer, but also they are trying to find out the potential buyers with the help of marketing to whom the goods can be sold at later stage। तो ये आपके पास क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओके। तो ये हमारे पास था मार्केटिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, मार्केट, मॉडर्न मार्केट क्या और ट्रेडिशनल मार्केट क्या। अब आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पे। फर्स्ट थिंग इज नीड एंड वांट।
So the main area where marketing is focusing is on need and wants of the consumer. अगर आपको नीड नहीं है किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी डिमांड कहाँ से बनेगी? ओके, तो नीड तो है, अनसेटिस्फाइड नीड तो है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या है, मार्केटिंग का बेसिक रोल क्या है? मार्केटिंग इज सर्चिंग those unsatisfied needs and then providing the information, okay, to the producer that these are the needs and these are the prospective wants, okay, कि वो नीड जो एक्चुअली वांट में अवेलेबल हैं, जिनको हम डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मनी पावर, ओके। तो वही चीज है कि आपको, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल सबसे पहले डिस्कस किया था कि नीड वांट एंड डिमांड में, कि हमें भूख लगी है। अब भूख लगी है तो क्या खाओगे? तो नेस्ले वाले ने कहा 2 मिनट में मैगी देते हैं आपको। तो मतलब व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग अवेलेबल? सो नेस्ले advertise its Maggie product by saying that you wait, within 2 minutes you will be having something to eat to set to to fulfill your hunger। तो ये क्या है? ये मार्केटिंग वालों ने अंडरस्टैंड किया है कि देयर नीड टू बी ए प्रोडक्ट, ओके, टू satisfy the need, the need is to fulfill the hunger, okay, and that hunger is being fulfilled with the help of a product which is affordable। तो अब वो हंगर थी, अब उसको क्या कर दिया कि ओके, ने उस नीड को सेटिस्फाई किया है बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो ये नीड को पहले वांट में कन्वर्ट किया कि ओके देयर आर नाउ, मैगी के बाद अब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई, टॉप रेमन्स आ गया, मैगी आ गई, yippee नूडल्स आ गए, और कोई तो अब उन में से आपको भूख लगी, आपने डिसाइड किया कि मैं नूडल्स खाऊंगा। तो नूडल्स चार पांच तरीके के हैं। अब आप उस वांट में से, ओके, आपकी वांट क्या थी? नूडल्स। अनसेटिस्फाइड नीड क्या थी? हंगर। हंगर से आपने शॉर्ट लिस्ट किया नूडल्स, और नूडल्स के बाद आपने क्या खाना है, जितना पैसा उसमें ऐड ऑन करोगे उस तरह का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कि आपके 10 रुपीज है, सो यू कैन बाय अ सिंगल पैक ऑफ नूडल्स ऑफ मैगी, okay. You need family pack, you have to add on money, and you have to find out the options which will help you satisfy your want। तो ये आपके पास सबसे पहला फीचर है कि नीड वांट को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग का काम है, by adding or by providing the products which will help in satisfying those need and wants at appropriate price, okay। दूसरा है आपके पास मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कि वट आर यू ऑफरिंग ए कस्टमर, मतलब आपको कोई एसयूवी है तो उसमें वो क्या दे रहा है? एंटी स्किड ब्रेक्स दे रहा है, सनरूफ दे रहा है, ऑटोमेटिक आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे रहा है, ओके, म्यूजिक सिस्टम अच्छा दे रहा है, सीटिंग कैपेसिटी और स्पेस, बूट स्पेस अच्छा दे रहा है, ओके, कलर, डिजाइन, शेप, मनोवरेबिलिटी, हैंडलिंग। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं एक प्रोडक्ट की ऑफरिंग। तो मार्केटिंग में आप ऑफर करते हो कि व्हाट आर द लग्जरीज और व्हाट आर द बेनिफिट्स विच वी आर providing through a particular product and why
Marketing is trying to convince the customer as to why they should buy our product and not the other's product, that these are the things which we are providing you at a particular cost. तो ये आपके पास क्या है, मार्केट ऑफरिंग, तो क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, क्या उसकी गारंटी है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, ओके उसकी सर्विसिंग कितनी जल्दी, तो ये सारी चीजें क्या है, मार्केट ऑफरिंग के अंदर है कि आप क्या ऑफर करने जा रहे हो जब एक प्रोडक्ट आप सेल करते हो, उस प्रोडक्ट में क्या ऑफर करने जा रहे हो और उसके साथ क्या क्या और एडिशनल बेनिफिट्स आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो ये मार्केटिंग का काम है। एंड थ्रू दीज ऑफरिंग्स दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द कंज्यूमर, and they are promoting them, they are inducing them to buy the product to satisfy their unsatisfied need. Okay. Then third is customer value. Okay. कस्टमर वैल्यू के, वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करना मार्केटिंग का काम है। कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को तभी बाय करता है जब उसको वैल्यू फॉर मनी मिलती है, मतलब जो पैसा लगाया उसमें उसको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उस लेवल की सेटिस्फेक्शन जो आपने गारंटी की थी, ओके, देन ओनली दे फील motivated to buy the goods. If they think that the cost which they are going to pay for the product which is being offered to them is quite high, then the consumer will try to avoid buying and having the experience of that particular product. So it is very important when you are offering the product to the consumer, you need to take care that the product is adding value to the customer's requirement, कि जो उसको चाहिए किस पर्पस के लिए, स्टेटस के लिए, क्या कहते हैं, इजी मनोवरेबिलिटी के लिए, ओके, उसकी कम से कम रिपेयर मेंटेनेंस होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें वो फुलफिल कर रही है, तो मतलब जो पैसा वसूल हो रहा है, वो होना चाहिए था, वो हो रहा है पैसा वसूल, तो ये कस्टमर वैल्यू है। तो कस्टमर को जब तक प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट की कीमत नहीं, फीलिंग नहीं आएगी कि दैट यस आई एम रिकवरिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव इन्वेस्टेड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टिल देन कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। और मार्केटिंग को ये इंश्योर करना है कस्टमर को दैट जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो सेफ एंड सिक्योर है, उसकी आपको फुल वैल्यू रिसीव होगी, मतलब आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, then the company will replace the product with a new one so that the customer's experience doesn't get affected। तो ये कस्टमर वैल्यू है मार्केटिंग। फिर है नेक्स्ट एस्पेक्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, सो एक्सचेंज मैकेनिज्म इज कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, दे आर बीइंग परचेज्ड फॉर मनी और मनी इज वर्थ, ओके। तो ये आपके पास एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उसको इनको पास मनी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टू बाय दैट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि अब कस्टमर के पास इस समय नहीं है फंड, तो कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, because they have understood that the okay customer is interested to buy the product, so they have offered them finance facilities। क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदिए, आप इतनी अपफ्रंट अमाउंट दीजिए और उसके बाद ईएमआईज देते रहिए एंड द प्रोडक्ट इज योर्स। तो ये क्या है कि आपने एक एक्सचेंज मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया जिसमें मनी पावर एसोसिएट हो जाती है फॉर द प्रोडक्ट विच हैज बीन चोजन बाय द customer। So customer is given the another important aspect that okay here
if you are not having the money available at right at this point of time, you have the money available, okay, and you can use that facilities to pay off and buy the product and use that product. तो ये क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है। तो इसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म में कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पीपल हु आर रेडी टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट, ओके, एंड every party should be able to make an offering to each other, means buyer should be ready to pay money or money's worth, and seller should be having the product available with him, in which he is ready to sell or provide to the buyer, okay, and they should be able to communicate and deliver the product or services as and when required and where it is required। तो communication उनकी बहुत ज़रूरी है, और ये भी important है that it helps in providing them the products, okay, buyer is seller is ready to make the product available at the place where the buyer actually want that product to be delivered, okay। तो ये आपके पास है, एंड देयर शुड बी फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, तो कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हैं कुछ फीचर्स आपके मार्केटिंग में, ओके। अब आगे है हमारे पास कि व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केटेड, हम क्या प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं? हम वही प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट की वैल्यू हो कस्टमर को, मतलब कस्टमर की कुछ नीड्स एंड वांट्स हैं, और वो प्रोडक्ट जो हम उसे ऑफर कर रहे हैं वो उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है, ओके। तो ये जो नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने में प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सिर्फ टेंजिबल नहीं होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं, जैसे सर्विसेज, आइडियाज, प्लेसेस। लाइक होटल में गए आप, तो होटल में आप क्या ऑफर कर रहे हो? एक सर्विस ऑफर कर रहे हो, एक स्टेटस ऑफर कर रहे हो, एक क्या कहते हैं आप, स्टाइल ऑफर कर रहे हो, और भी बहुत कुछ ऑफर होता है। तो हाई एंड जो आपकी प्राइसेस चार्ज की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है, जो आपको एक्सपीरियंस ऑफर किया है किसी होटल ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम क्या मार्केट कर सकते हैं। हम आइडियाज मार्केट कर सकते हैं, हम सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं, हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम हर वो प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं जो कस्टमर की नीड वांट को सेटिस्फाई करता है और उनकी डिजायर्स को फुलफिल करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। हम उन सारे प्रोडक्ट्स को, लाइक हम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, एयरलाइन एक्सपीरियंस, मोबाइल एक्सपीरियंस, मोबाइल फोन एक्सपीरियंस, ओके, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन लाइफ इंश्योरेंस, देन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम इनको मार्केट कर रहे हैं, आइडियाज़ को, पर्सनालिटीज़ को, थॉट्स को, ठीक है, पॉलिसीज को, इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? मार्केट कर रहे हैं, ओके, टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स हु रिक्वायर दैट आइडियाज, ओके। जिनको जैसे आइडियाज चाहिए वैसे वो मार्केट कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो ये मार्केटिंग का काम है, ओके। तो अ, ये है। अब इसके बाद एक वर्ड है मार्केटर। हु इज मार्केटर? ओके, मार्केटर इज एनी पर्सन हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज। उसे हम क्या कहते हैं? मार्केटर कहते हैं। और ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसे एनालाइज करता है, और उसके बाद वो फाइंड आउट करता है who are how many potential customers are available in the market, and who are the producer who are ready to produce a product to satisfy those potential कस्टमर्स। तो ये सारा काम किसका है? मार्केटर का है, जो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, एनालाइज करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के
डेवलप करके ऑफर करने की कोशिश करता है मार्केट में, ओके, टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बेसिकली ये सारा रोल कौन प्ले कर रहा है? मार्केटर, ओके। एन इंडिविजुअल हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ए मार्केट ऑफरिंग, satisfying the demand of the customer, and helping us in smooth exchange of goods and services। तो ये मार्केटर का रोल है, ओके। तो मार्केटर ये चीज़ है। तो हमने इसमें यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। तो आपने मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और मार्केटर कौन है, who he is the individual who is helping in exchange of goods and services, okay, for money और money is worth। तो ये कौन है? मार्केटर है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलोसफीज को करेंगे और फंक्शंस को करेंगे। थैंक्स।